بات کرتے ہیں جیل بھرو تحریک کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز آج ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور کارکن گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نمائندے شبیر حیدر ظفر کے ساتھ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد موجود ہیں، ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا آج باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر ان کے کارکنان کے اعزاز میں جو تقریب کا جو اہتمام کیا گیا اس کا آغاز ہوگا۔ اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ تقریب جو ہے تقریباً 12 بجے کا ٹائم دیا گیا اور یہاں سے 1:30 بجے ایک ریلی کی شکل میں جو ہے چیرنگ کراس پر جو جائیں گے کارکن، اور وہاں پر جا کر 200 کارکنان اور 5 جو ہے سینئر رہنما جو ہیں وہ اپنی گرفتاری دیں گے۔ اس حوالے سے میں بات کروں گا، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد۔ میڈم بتائیے گا، اگر حکومت کہے گی کہ ہم اس کے اوپر ریلی کی جو ہے اجازت نہیں دی جائے گی تو اس کے اوپر گرفتاری کریں گے، تو آپ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اعلان کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی اپنا گرفتاری دینے جا رہے ہیں، وہ رستے میں گرفتار کر لیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ گرفتاری کے بارے میں تو کوئی انکاری نہیں ہے نا کسی کو، نہ ہمیں انکاری ہے نہ ہمارے لوگوں کو انکاری ہے۔ ویسے اصولاً یہاں 144 نہیں لگی ہوئی، انہوں نے جہاں لگائی ہوئی ہے وہاں ہم انشاءاللہ اپنے 200 بندے اور 5 ہمارے لیڈر وہاں پہنچ جائیں گے تاکہ ان کو گرفتار کر لیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں نہ ہمیں جیلوں کا خوف ہے نہ جیلوں کا ڈر ہے، نہ کسی قسم کا خوف ہے، ہمیں جو مرضی یہ ڈراتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ کھڑے میں اپنے موقف پہ، اور انشاءاللہ جلدی الیکشن کروائیں گے۔ اس کرپٹ حکومت یہ جو آئی ہوئی ہے وہ امپورٹڈ حکومت، اس سے فراغت لیں گے۔ اگر الیکشن جیسے کہ صدر کی جانب سے ایک الیکشن کی تاریخ دی گئی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اگر 9 اپریل کو الیکشن نہیں ہوتا تو کیا کرنا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہم تو الیکشن کی تیاری کرنی شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہمارا تو ڈور ٹو ڈور اس وقت پوری ہر طرف پورے لاہور میں چل رہے ہیں۔ اب تو مریم بی بی بھی ڈور ٹو ڈور کرنے کا کہہ دیا انہوں نے، تو وہ بھی ہمارا اگزامپل انہوں نے فالو کر دیا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن ہونے ہی ہیں، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی دوڑیں، جتنا مرضی بھاگیں، الیکشن تو ہونی ہی ہے۔ ہم نے سنا ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آج تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اگر حکومت کی جانب سے جو دفعہ 144 لگائی گئی ہے اس کے اوپر گرفتاری ہماری کی بھی جاتی ہے تو ہم نے گرفتاری دینی ہی دینی ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ہمیں راستے میں گرفتار کر لیتے تو ہم تب بھی گرفتاری دیں گے۔ اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ڈریں گے، اور یہ ہماری کوشش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارے مطالبات اور یہ جو الیکشن ہے یہ نہیں ہو جاتا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک پی ٹی آئی آج لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرے گی۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے فیصل چوک چیرنگ کراس پر پی ٹی آئی لیڈرشپ اور کارکنان گرفتاریاں دیں گے۔ قائدین کی تقاریر کے لیے کنٹینر بھی چیرنگ کراس پر پہنچا دیا گیا ہے۔ کنٹینر پر کارکنان کا لہو گرمانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن کراؤ ایجنڈا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے آج سے پاکستان تحریک انصاف شہر لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو اعلامیہ دیا گیا ہے اس کے مطابق آج سے باقاعدہ طور پر جو 200 کارکنان ہیں جن میں لیڈرشپ بھی ہے وہ مال روڈ پر چیرنگ کراس کے مقام پر باقاعدہ طور پر جو گرفتاریاں ہیں وہ دیں گے، اور قافلے کی شکل میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان اور لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر پہنچے گی۔ اس چیرنگ کراس مال روڈ پر بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور یہاں سے ہی جو گرفتاریاں دینے کا عمل ہے وہ شروع کرتے ہوئے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ جیسے ہی پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے اس آج کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ فیصل چوک کے مقام پر جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ اس چیرنگ کراس فیصل چوک کو چاروں اطراف سے جو بینرز ہیں وہ لگا کر اس کو سجا دیا گیا ہے۔ جگہ جگہ پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تصاویر پر مبنی جو جہازی سائز کی فلیکسز ہیں ان کو بھی یہاں پر آویزہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ہر جلسے میں اور ہر ریلی میں کنٹینر موجود ہوتا ہے، وہ کنٹینر بھی اس وقت یہاں پر پہنچ چکا ہے جس کے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی کی جو تصویر ہے وہ لگائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈا ہے جیل بھرو تحریک کا اس کا بھی جو منشور ہے وہ بھی اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کنٹینر پہ کارکنان کا لہو گرمانے کے لیے جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ بھی نصب کیا گیا ہے، اور جو لیڈرشپ یہاں پر پہنچے گی وہ اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر کارکنان سے خطاب بھی کرے گی۔
कारकुनान के यहाँ पर पहुँचने के लिए जो वक्त है वो 2 बजे का दिया गया है, लेकिन अभी से ही जो कारकुनान है वो यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है और इन कारकुनान की जानिब से आकर भरपूर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और अपनी पार्टी के साथ इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने हाथों में जो फ्लेक्सिस हैं वो भी उठा रखी हैं। इसके अलावा अब से कुछ देर कबल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान हैं वो एक अलामती जो जेल है वो भी लेकर इस फैसल चौक के मुकाम पर पहुंचे हैं और उस जेल को दिखाकर हुकूमत पर यह दबाव डाला जा रहा है कि जो PTI की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया गया है उसके तहत इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। 9 अप्रैल 2022 से जब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और उसके बाद वफाक में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत बनी, उसके बाद से मुसलसल PTI की जानिब से ये हुकूमत के ऊपर जो दबाव है उसको बढ़ाया जा रहा है। इसी तनाजुर में माजी में देखा गया कि मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे किए गए, उसके अलावा जो लॉन्ग मार्च है वो भी अमल में लाया गया और अब ये PTI की जानिब से इलेक्शन कराओ मुहिम के तहत ये बड़े राउंड का आगाज़ किया गया है जिसमें ये जेल भरो जो तहरीक है उसका आगाज़ किया गया है। आज जो अभी तक PTI की लीडरशिप की जानिब से बताया गया है उसके मुताबिक साबिक जो गवर्नर पंजाब हैं उमर सरफराज चीमा उनका नाम है जो कि गिरफ्तारी देंगे। रात को ये भी इतलात मौसूल हो रही थी। ज़ैन बताइएगा, पुलिस किसी भी शख्स को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार तो नहीं कर सकती, तो इस हवाले से क्या लाहेमल बनाया है PTI ने कि ऐसा कौन सा काबिले दस्त अंदाजी जुर्म किया जाएगा जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पर मजबूर हो जाएगी? अब इसमें देखा जाए तो एक तरफ तो PTI की जानिब से ये हिकमत अमली बनाई जा रही है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर किस तरह डाला जाएगा, तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की जानिब से भी इन गिरफ्तारियों और जेल भरो तहरीक के हवाले से जो हिकमत अमली है वो इख्तियार की गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ऐसे कारकुनान जो आज रज़ा कराना तौर पर जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी के लिए पेश होंगे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि आया माजी में उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई FIR मौजूद है या उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल ऑफेंस मौजूद है जिसकी अदालत से ज़मानत नहीं हुई। तो उस क्रिमिनल रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ उन्हीं कारकुनान की, उन्हीं लीडरशिप की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई FIR मौजूद है। इसके अलावा ये 2 रोज़ कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। तो अगर हुकूमत की तरफ से ये हिकमत अमली बनाई जाती है कि इन कारकुनान की गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी है तो इस चीज़ को भी जो वजह है वो बनाया जा सकता है कि इन कारकुनान की जानिब से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई है तो उसके ऊपर भी इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं। तो ये अभी तक जो पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली है वो सामने आई है। अब इसमें और भी चीज़ें देखने में आई हैं कि जो यहाँ पर जेलें मौजूद हैं लाहौर में वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, उनमें पहले से ही बड़े जो मुजरम हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भी प्लान किया गया है कि अगर इस जेल भरो तहरीक के तहत PTI की लीडरशिप की और जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाना हुई तो फिर इनको जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर मौजूद जो जेलें हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। जेल भरो तहरीक के तहत कारकुनान की यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। 2 बजे का टाइम दिया गया है। तो जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। PTI का चेरिंग क्रॉस पर गिरफ्तारियां देने का ऐलान। माल रोड पर सियासी पावर शो के दौरान ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। फैसल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करने के बाद ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान किया होगा। ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया ताहाल खामोश है। PTI के माल रोड पर सियासी पावर शो के दौरान ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए कोई ट्रैफिक प्लान नहीं बनाया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान की कॉल पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ लाहौर चेरिंग क्रॉस से करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है आज चेरिंग क्रॉस पर अपनी गिरफ्तारी देगी। इसी सिलसिले में चेरिंग क्रॉस को ट्रैफिक के लिए वो बंद कर दिया जाएगा और ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए
کوئی پلان تاحال مرتب نہیں کیا۔ ٹریفک پولیس اس سلسلے میں تاحال خاموش ہے، جبکہ سیاسی پاور شو کے باعث اس ٹریفک مال روڈ کو جو مرکزی شاہراہ ہے لاہور کی، اس پر ٹریفک جو ہے وہ بند کر دی جائے گی، لیکن تاحال جو ان سے کارکن ابھی تک نہیں پہنچے۔ ٹریفک تاحال جو ہے روانی اس کی برقرار ہے، لیکن جیسے یہاں پہ کارکنان جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹریفک کا جو دباؤ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے ڈائیورژن پلان کیا ہوگا اس کے لیے ٹریفک پولیس جو ہے وہ تاحال خاموش ہے۔ جی شکریہ زین۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک، پولیس کا قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، توڑ پھوڑ، سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر قانون حرکت میں آئے گا۔ مزید جان لیتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ مجاہد سے رابطہ منقطع ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک، پولیس کا قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، توڑ پھوڑ، سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر قانون حرکت میں آئے گا۔ پولیس کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ اگر کوئی سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے گا تو اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ مجاہد بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ آج بالکل پاکستان تحریک انصاف جو جیل بھرو تحریک کا آج باقاعدہ آغاز کر رہی ہے، اور اس کی پی ٹی آئی کی جانب سے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ جو کارکنان اور سینئر قیادت وہاں پہ آئے گی گرفتاری دینے کے لیے، اسے جو ہے وہ گرفتار کرے گی، لیکن پولیس کی جانب سے رائے کے مطابق ابھی تک اس طرح کا گرفتاریوں کو جو ہے وہ کرنے کا کوئی پلان ترتیب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پولیس کی جانب سے جو اعلیٰ افسران ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، ان کی جانب سے یہ ضرور ہدایت کی گئی ہے کہ غیر قانونی طور پر اگر کوئی کام کرتا ہے، جلاؤ گھیراؤ کرتا ہے اور سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو وہاں پہ موقع پر ہی روکا جائے گا۔ لیکن جو گرفتاریاں جس نیت سے دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، ان کی گرفتاری قطعی طور پہ عمل میں نہیں لائی جائے گی، اور دفعہ 144 کی جو خلاف ورزی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور دیگر قیادت جو کرے گی، اس کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے، لیکن ان کو نہ روکنے کا ابھی تک فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر آئیں گے ان کو بھی اور ان کی قیادت کو بھی فی الحال گرفتار نہ کرنے کا پولیس حکام جو ہیں ان کی جانب سے نیچے جو پولیس اہلکار ہیں، متعلقہ ایس پیز ہیں، متعلقہ ایس ایچ اوز ہیں، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے، ماسوائے اس کے کہ یہ کوئی غیر قانونی عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جانب پولیس کی جانب سے تیاریاں تو یقیناً مکمل کی گئی ہیں، اور جب دفعہ 144 کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور ان کو گرفتار جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر پولیس کرتی ہے، لیکن پولیس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کے خلاف صرف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور بعد میں مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پولیس ان سے نپٹنے کے لیے موقع پر بھی گرفتاریاں کر سکتی ہے۔ اگر جلاؤ گھراؤ کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ان کو لاہور کے ساتھ ہی جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، حوالاتی کے طور پر جیل میں بھی، اور دیگر جو سینٹرز ہیں لاہور میں بھی ہیں، اور دیگر اضلاع جیسے کہ قصور ہے، شیخو پورہ ہے، بالکل قریب ہے لاہور کے، وہاں پر بھی ان کو بہت شکریہ مجاہد۔ دو بنیادی محرکات و اہداف کے تحت جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ٹویٹ کیا گیا ہے، کہتے ہیں تحریک منی لانڈرنگ کے ذریعے عوام کا پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف ہے۔ آئین کے تحت میسر بنیادی حقوق پر یلغار کے خلاف ایک پرامن اور غیر متشدد احتجاج ہوگا۔ دو بنیادی محرکات اور اہداف کے تحت جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ٹویٹ، کہتے ہیں تحریک منی لانڈرنگ کے ذریعے عوام کا پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف ہے۔ آئین کے تحت میسر بنیادی حقوق پر یلغار کے خلاف ایک پرامن اور غیر متشدد احتجاج ہوگا۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز 2 بجے چیرنگ کراس سے ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کی تیاریاں مکمل۔ فوکل پرسن جیل بھرو تحریک سینیٹر اعجاز چودھری کا ویڈیو پیغام جاری۔ پارٹی کے سینئر رہنما 200 کارکنان کے ہمراہ گرفتاری دیں گے۔ کارکنان خوف کے بت کو توڑ کر تحریک کا حصہ بن رہے ہیں۔ کے اندر 2 بجے چیرنگ کراس مال روڈ کے اوپر ہزاروں لوگوں کے موجودگی کے اندر 200 لوگ گرفتاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے،
और फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। लाहौर से पेशावर, पेशावर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से मुल्तान और अला हजल कयास, ये पूरे मुल्क के अंदर ये तहरीक जो है फैल जाएगी और नौजवान इस तहरीक के अंदर जौक दर जौक शामिल होना चाहते हैं। हजारों की तादाद में लाहौर में नौजवान हैं कि जो इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस तहरीक को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह लाहौर ने हमेशा इमरान खान का खुल के साथ दिया है। जितना मर्जी आप जेल में भर लें, हम किसी चीज से खाइफ नहीं है और ये दर हकीकत उस हकीकी आजादी की तकमील का रास्ता है जिसके नतीजे में इमरान खान इस मुल्क के अंदर दोबारा हुकूमत में आएंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर पुलिस हाई अलर्ट। CCP बिलाल सदीक कामियाना की पुलिस को शहर की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत की गई है। CCPO बिलाल सदीक कामियाना कहते हैं शहरियों की हिफाजत अमन बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर पुलिस हाई अलर्ट है। CCPO बिलाल सदीक कामियाना की पुलिस को शहर की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताएगा पुलिस की जानिब से कोई अजाफी नफरी भी तैनात की गई है? बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर पुलिस में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो सख्त कर दिए गए हैं और इस हवाले से बिलाल सदीक मैंने कहना है कि शहरों की हिफाजत और अमन का बरकरार रखने के लिए जो है वो अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए सिक्योरिटी जो है वो भी हाईलाइट कर दी गई है। पुलिस लाहौर के बिलाल सदीक मैंने कहना है कि पुलिस जो है लाहौर पुलिस अलर्ट है और शहर के दाखिली और खारजी रस्तों पर नाकों पर मशरूत अपराध गाड़ियों की मुकम्मल या वो चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस अफसरान और जो अमन दुश्मन और जरन के अनासर है उन पर भी कड़ी नजर रखे हुए हैं। इस हवाले से जो लाहौर पुलिस का प्लान जो नजर आ रहा है वो यही है कि जो सिक्योरिटी हाईलाइट रखी जाएगी जहाँ पर भी 140 की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ पर जो है वो कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो है माल रोड पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो है वो दफा 140 नाफिज की गई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 100 दफा 140 की खिलाफ वर्जी PTA के कारकुनों और रहनुमाओं की तरफ से कर दी गई है। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि पहले जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद जो है वो गिरफ्तारियां की जाएंगी। तमाम जो रिवा करना तौर पर जो गिरफ्तारियां देने के लिए रहनुमा और कारकुन थाने में जाएंगे या पुलिस दफातर में जाएंगे, उनको फिलहाल गिरफ्तार करने का जो है वो ताल कोई फैसला नहीं किया गया। मुदस्सिर, अभी आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी PTI जेल रोड ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं और यहाँ से इंशाअल्लाह हम एक काफले की शक्ल में चेरिंग क्रॉस जाएंगे और वहाँ अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। और ये मुहिम का आज आगाज है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह लाहौर से जिस मुहिम का आगाज किया जा रहा है ये दीगर शहरों में भी फैलेगी। इंशाअल्लाह पेशावर, रावलपिंडी, 25 तारीख को मुल्तान, जनूबी पंजाब का जो दिल है वहाँ, और फिर गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों में इसका आगाज़ किया जा रहा है। और इसका मकसद पुरअमन एहतजाज है। इसका मकसद ये बावर कराना है उन कुव्वतों को जो आज आइन शिकनी की जुर्रत कर रही हैं, जो आज आइन को पामाल करने पर तुली हुई हैं, जो आज सदर के आइनी इक़दामात को, जो इंतखाबात की उन्हें तारीख का ऐलान किया है मशावरत के बाद और 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान वो कर चुके हैं, आज उसमें वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। सदर पर उन्होंने कौमी असम्बली में, सेनेट में तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके खिलाफ करारदादें पेश करने की कोशिश की। काबिले अफसोस बात है कि हम इतने गिर गए हैं कि हमने सब रिवायात को पामाल कर दिया है। सदर ने कोई गैर आइनी बात नहीं की। थोड़ा रोक कर लेना। 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना असेंबली की तहलील के बाद एक आइनी जिम्मेदारी है। और अगर कोई फर्द या कोई इदारा उस किरदार में रुकावट बन रहा है या अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर रहा, तो सदर ने
انہیں آگاہ کیا ہے، اپنے خطوط کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے انہیں آگاہ کیا ہے، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلوایا ہے۔ ہم اس آئینی ذمہ داری کو آگے نبھانے کے لیے، ہم جو بنیادی حقوق عام شہریوں کے پامال ہو رہے ہیں، خاص طور پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے، جو ہمارے کارکنان پر، ہمارے قائدین پر جو ناجائز اور جھوٹے اور من گھڑت پرچے کیے گئے ہیں، ان کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ہم اس کے خلاف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور یہ بر صغیر کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں جتنی پولیٹیکل موومنٹس ہوئی ہیں، اس میں جیل بھرو تحریک اس کا ایک حصہ مختلف ادوار میں رہی ہے۔ ہم نے یہ راستہ اس لیے چنا ہے کہ ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے، ہم اس معیشت کو مزید نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 مہینوں میں ملک کے معاشی حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں۔ بے روزگاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، صنعت بند ہو رہی ہے، مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ 38.4% آج افراط زر ہے، اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جب IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی گئی ہیں، جو ان کا پورا نفاذ ہوگا تو یہ شاید 40% کو چھو جائے یا اس سے اوپر تجاوز کر جائے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، آٹے کی لائنیں ہیں، کسان کو یوریا کھاد نہیں مل رہی، گھی کی قیمت میں 80۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے مال روڈ چیرنگ کراس 8 سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جب تک قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تب تک لاہور پولیس کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار نہیں کرے گی۔ پولیس کی جانب سے اہم فیصلہ، پولیس نے جب تک قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تب تک کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف سے طرف سے مال روڈ چیرنگ کراس پر آج سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جب تک قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تب تک لاہور پولیس کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار نہیں کرے گی۔ لاہور پولیس کی جانب سے بڑا فیصلہ، پولیس کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جب تک قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تب تک لاہور پولیس کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار نہیں کرے گی۔ اہم اور بڑی خبر اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے مال روڈ چیرنگ کراس آج سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا گیا۔ جب تک قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تب تک لاہور پولیس کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار نہیں کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ جیل بھرو تحریک کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج 2 بجے مال روڈ چیرنگ کراس پر تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنمائیں جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک سرکاری املاک کو توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی تب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ اس تحریک کے حوالے سے عمران خان نے سوشل میڈیا پر بیان بھی جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کے لیے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں۔ یہ تحریک پرامن ہے اور ہمارے آئین پر حملے اور بنیادی حقوق نہ ملنے کے خلاف بلا اشتعال احتجاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شرمناک طور پر FIR اور نیب کیسز اور حراستی تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے صحافیوں اور سوشل میڈیا کے لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ اب تحریک انصاف کی جانب سے مال روڈ چیرنگ کراس پر جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جب تک قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تب تک لاہور پولیس کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہ کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار نہیں کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے اس تحریک کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ ہماری تحریک منی لانڈرر، ملک کی دولت لوٹنے اور خود کو NRO دے کر ملکی معیشت برباد کرنے والوں کے خلاف ہے۔ چیئرمین PTI نے مزید کہا کہ خاص طور پر غریب اور مڈل کلاس طبقہ مہنگائی اور بے روزگاری تلے دب گیا ہے۔ تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے ہماری جیل بھرو تحریک میں شامل ہو۔ اور اب اس جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پولیس کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تب تک لاہور پولیس کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار نہیں کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ کم از کم 200 کارکنان جو ہیں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سب معاملے پہ بات کرتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, माल रोड पर भी जेल भरो तहरीक का जो है वो चेयरिंग क्राफ्ट पे आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से ज़राए के मुताबिक पुलिस की जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं और प्रिजन लाइन भी जो है उनको भी रेडी कर दिया गया है। और इस हवाले से जो पीटीआई के कारकुन हैं माल रोड चेयरिंग क्राफ्ट पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। इस वजह से अभी जो पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हम सिक्योरिटी के लिए आए हैं, फिलहाल हमारा गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। ताहम ज़राए के मुताबिक उनके पास फरिश्ते भी मौजूद हैं जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो चुकी है और दफ़ा 144 का एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद जो है इनके जो रहनुमा हैं उनको खास तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। जो जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं, जो जेल भरो तहरीक की हवा दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाने का इम्कान है। जो पुलिस के अफसरान हैं उनके पास जो है फरिश्ते मौजूद हैं और उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। तो हम ये भी पुलिस राय के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि जो रहनुमा है इनको लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जेल, कैंप जेल और सेंट्रल जेल को लखपत जेल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो कैदियों की गुंजाइश, ज़्यादा कैदी रखने की गुंजाइश नहीं है। कैंप जेल में जो है वो 3000 के करीब 2500 के करीब कैदी रखने की गुंजाइश है। ऑलरेडी वहाँ पर 5000 के करीब जो कैदी हैं वो बंद हैं। कोट लखपत जेल में भी जो इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा, गुंजाइश से ज़्यादा जो कैदी हैं वो बंद है। इस तरह जितने भी रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार होंगे इनको दीगर डिस्ट्रिक्ट जेल जैसे लोधरा नई जेल बनाई गई है वहाँ पर कैदी रखने की गुंजाइश है, वहाँ पर इनको रखा जाएगा। और काड़ा में नई जेल बनाई गई है, काड़ा में जो है वहाँ इनको रखा जाएगा। इसके अलावा हाफिजाबाद में नई जेल बनाई गई है, वहाँ पर इन रहनुमा को रखा जाएगा। इस वजह से पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस का ये कहना है कि आला पुलिस अफसरान की तरफ से अभी गिरफ्तारियों का इम्कान नहीं है। ताहम दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई है यहाँ पर और पीटीआई के कारकुन जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर मिली नगमे जो पीटीआई के पार्टी के हैं वो भी लगाए जा रहे हैं और इस वाले से ज़राए के मुताबिक एफआईआर। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के काफिलों की मॉल रोड की तरफ रवानगी शुरू। पीटीआई रहनुमा मियां आबाद फारूक ने अपनी गाड़ी को ही मसनूई जेल बना दिया। मियां आबाद फारूक ने गाड़ी के ऊपर बनाई गई मसनूई जेल में खुद को कैद कर लिया। कैदियों वाली गाड़ियों का काफिला प्रेस क्लब पहुंच गया है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के काफिलों की मॉल रोड की तरफ रवानगी शुरू कर दी गई है। पीटीआई रहनुमा मियां आबाद फारूक ने अपनी गाड़ी को ही मसनूई जेल बना दिया है। ये मनासर अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मियां आबाद फारूक ने गाड़ी के ऊपर अब बनाई गई मसनूई जेल में खुद को कैद कर लिया है। इस बारे जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल पीटीआई के कारकुनों की माल रोड की तरफ रवानगी का अमल शुरू हो चुका है। NA 120 से पीटीआई के मरकजी रहनुमा मियां आबाद फारूक ने मुनफरद अंदाज से जो है वो अपने आप को जो है वो गाड़ी के ऊपर एक मसनूई पिंजरा बनाकर जो उसके अंदर कैद कर लिया है, जिसको उन्होंने जेल से तशबीह दी है और खुद को जो है वो रजा कराना तौर पर उसमें कैद कर लिया है। जो आज जो पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां होनी है उनमें मियां आबाद फारूक का नाम नहीं, लेकिन ये एक सिंबॉलिकली वो भी उन गिरफ्तार लोगों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और यहाँ पर फैसल चौक पहुंच चुके हैं। तो पीटीआई के अब कारकुन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जिन्होंने शुक्रिया लियाकत। पीटीआई जेल भरो तहरीक का आगाज आज से करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तहरीक को खुद मॉनिटर करेंगे। ज़मान पार्क में सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं सुलेमान तारिक से। जी सुलेमान, बताइएगा, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से तहरीक को खुद मॉनिटर किया जाएगा, इस हवाले से क्या लाहेअमल तय किया गया है? जी, जैसा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से जो कॉल दी गई आज जेल भरो तहरीक की और आज पहला रोज़ है और इसका बाकायदा आगाज़ आज से होने जा रहा है। माल रोड चेयरिंग क्रॉस पे आज पीटीआई के 200 कारकुनान जो है वो गिरफ्तारी पेश करेंगे इस तहरीक के सिलसिले में और इसके साथ इस 200 कारकुनों में साथ ही मरकज़ी रहनुमा भी होंगे, जिसमें सेनेटर वलीद इकबाल हैं, जिसमें मुराद राज हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा और इसके साथ दीगर अहदेदारान भी हैं। इन 200 कारकुनों में जो गिरफ्तारी के लिए पेश होंगे कुछ ही देर के बाद माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर ये तमाम जो कारकुनान हैं गिरफ्तारी के लिए पहुँचेंगे। इस वक्त हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सियासी गर्मा गर्मी जो है वो खासी तेज़ होती चली जा रही है। कारकुनों की आमद का सिलसिला सुबह से ही वक्तन फ़वक्तन जारी था और अब खासी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं ज़मान पार्क में और खासा जोश व जज्बा उनमें देखने को मिलता है और एक्साइटेड नज़र आते हैं और उनसे जो हम बात करते हैं तो सुलेमान, हर जलसे और तहरीक के बाद एक ही सवाल होता है कि कितने आदमी थे। इस वक्त ज़मान पार्क में आप मौजूद हैं, यहाँ कारकुनान की तादाद के हवाले से अपडेट कीजिए।
आज जो कॉल दी गई है वो तमाम कारकुनों को वो पावर शो के लिए जेल रोड पीटीआई की ऑफिस और फिर वहाँ से फिर माल रोड रवाना होना है। तो जितने भी दीगर काफ़िले हैं वो तो उसी तरफ रुख किए हुए हैं। ज़मान पार्क पे अपने तौर पे कारकुनान पहुँच रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद तो नहीं है जिसे हम कह सकें कि जैसे कुछ रोज़ पहले तक यहाँ पर जिस तरह से जमे गफ़ीर अवाम का जमा था उतनी बड़ी तो नहीं है। अपने तौर पर बहुत से कारकुनान। वेलकम बैक। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का मामला, चेरिंग क्रॉस पर पीटीआई के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। पीटीआई के रहनुमा मियां आबाद फरूक काफिले की सूरत में चेरिंग क्रॉस पहुंच गए हैं। पीटीआई के कारकुनों की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। आपको बताएं कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक का ये मामला है। चेरिंग क्रॉस पर पीटीआई के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज से जेल भरो तहरीक का आगाज किया जा रहा है और पहले मरहले में पीटीआई के 200 से ज्यादा जो कारकुनान हैं वो चेरिंग क्रॉस पर आज अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। तो इसी तनाजुर में अभी से ही जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद है जिन्होंने हाथों में फ्लेक्सेस उठा रखी हैं और अपनी पार्टी के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से फैसल चौक मॉल रोड को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को मुतबादिल जो रास्ते हैं वहां से ट्रैफिक को गुजारा जा रहा है। इसके अलावा जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से पार्टी के जो नगमे हैं उनके ऊपर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा जो हुकूमत है उसके खिलाफ आज गिरफ्तारी पेश करने वाले रहनुमाओं में मियां आबाद का नाम तो शामिल नहीं है। ये बताइएगा कि गिरफ्तारी पेश करने वाले रहनुमाओं के अलावा दीगर रहनुमा भी चेरिंग क्रॉस पहुंच रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी और सूबाई क़यादत है वो अभी तक चेरिंग क्रॉस पर नहीं पहुंच सके। इन मुकामी क़यादत को चेरिंग क्रॉस पर पहुंचने के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक ये जो लीडरशिप है ये 2 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे, लेकिन अभी से ही अपनी क़यादत के साथ इजहार यकजहती के लिए और सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा मियां इबाद यहाँ पर पहुंचे हैं वो उन्होंने जो अलामती जेल है वो अलामती जेल जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। पीएसएल की बात करें तो पीएसएल 8 के हवाले से लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर के मुताबिक पुलिस के 5000 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पीएसएल की सिक्योरिटी के लिए 11 एसपीज, 34 डीएसपीज, 94 इंस्पेक्टर्स तैनात हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरों के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। इन तमाम इंतजामात के मुतालिक जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, पीएसएल सिक्योरिटी प्लान लाहौर पुलिस की जानिब से जारी कर दिया गया है और डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर की जानिब से कहा गया है कि क्रिकेट खिलाड़ियों समेत शायकीन को भी भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उनका ये कहना था कि लाहौर पुलिस के 5000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे और पीएसएल सिक्योरिटी पर 11 एसपी, 34 डीएसपी और 94 इंस्पेक्टर्स तैनात होंगे और 443 अपर सबॉर्डिनेट जो है वो भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और 162 लेडी अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लीड फोर्स की 43, डोल्फिन स्क्वाड की 107 और पुलिस रिस्पांस यूनिट की 58 टीमें पेट्रोलिंग करेंगी। एयरपोर्ट से स्टेडियम के गिरदोनवाज समेत मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाजात लगाए जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद। बुलेटिन में अब बात करते हैं महंगाई की। तो मार्केटों में बदस्तूर महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज 170 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। टमाटर 43 से लेकर 60 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों में इजाफा जो है वो नहीं रुक सका है। ब्रायलर आज भी 7 रुपये महंगा करके 654 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया, यानी कि ब्रायलर गो जो है मार्केट में इस वक्त 650 रुपये फ़ी किलो से जायद की सतह पर पहुंच चुका है। जबकि साफ़ी ब्रायलर जो है वो 654 के बरक्स जो है 740 से 750 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बोनलेस ब्रायलर जो है वो 800 रुपये से 850 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। और जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा हुआ है, टमाटर 3 रुपये महंगा करके 43 रुपये, अदरक 20 रुपये महंगा करके 540 रुपये,
रुपए, लीमू 5 रुपए महंगा करके 100 रुपए और शिमला मिर्च 5 रुपए महंगी करके 115 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ब्रायलर 650 रुपए से महंगा हो चुका हुआ है, दीगर सब्जियों के हवाले से क्या कहेंगे, महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई तो डबल ट्रिपल बढ़ गई है। फिलहाल गरीब बंदे का तो कोई हिसाब नहीं है। जिसकी 20,000 इतना है वो अगर 10,000 का राशन भी लेता है, बिल है, बिजली है, उसके में क्या करेगा वो। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो तो अब गरीब आदमी की पहुंच से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी हुई हैं। 650 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर जो है वो मार्केट में पहुंच चुका हुआ है और महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। आम शहरी के लिए अब गुजारा जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे सस्ता हो गया। बैंकारी औकात के आगाज़ पर इंटरबैंक डॉलर रेट 262 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर रेट बदस्तूर 265 रुपए तक है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जाहिद आबिद से जानते हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ के बरक्स आज करेंसी मार्केट में कदर मुस्बत रुझान देखा गया। रुपए की कदर में कमी हुई है। सुबह के वक्त बैंकारी औकात के आगाज़ के साथ ही डॉलर की कदर में कमी होना शुरू हुई, जो कि इस तक तकरीबन 51 पैसे डॉलर सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक डॉलर रेट 262 रुपए तक ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में तकरीबन 266 से 267 रुपए तक इस वक्त डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों से मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसमें ज़्यादातर डॉलर का पलड़ा भारी रहता है। ताहम गुज़श्ता रोज़ रुपए की कदर को कुछ संभाला मिला था, लेकिन आज फिर डॉलर की कलम में इजाफा होने की वजह से इसकी कदर में दोबारा कमी। आपका शुक्रिया जाहिद।